good morning, good afternoon, and good evening to all my students and my viewers. Today is Thursday, and I'm Daraksha Aftab, doing the chapter Indigo from the book Flamingo, which is prescribed to both CBSE as well as JAC. So I've already completed more than half of the chapter, and we have reached to the point where we are talking how civil disobedience triumphed for the first time in modern India. Now that was one of the most important historical moments which we have had in the history. Why? Because that was a situation where we understood that people, when they formed a group, the entire crowd could have an impact on a particular government, and चाहे वो कोई भी ताकत क्यों ना हो, अगर एक क्राउड है, अगर एक कंट्री के सारे लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो वो कोई भी गवर्नमेंट को अपने जगह से हिला सकती है. ये चीज हम लोग लास्ट क्लास समझे थे जब हम लोग ये जाने थे दैट गांधी वॉज एबल टू इंस्टिल दैट काइंड ऑफ नेशनलिज्म, जो देशभक्ति है वो उन सारे लॉयर्स के अंदर जाग गया था, एंड दे वर रेडी टू फॉलो गांधी टू जेल. एंड तब गांधी ये स्टेटमेंट दिए थे दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, क्योंकि वो डर से बैटल था, वो डर के अगेंस्ट बैटल था, एंड वो कहीं ना कहीं गांधी समझ गए कि वो जीत चुके हैं. ओके, so let us proceed on today, and we are in page number 51, almost the last or the second last paragraph. Okay, so let us begin without wasting any further time. Okay, so just let us start reading. The text is also on the screen, I've marked. Now see, Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of investigators and vehement protests of the landlords. So we are looking here that Gandhi and lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry. So when they understood that the entire crowd is with us, lawyers भी अब समझ चुके हैं, तो वो गांधी एंड lawyers साथ में गए कि हम लोग एक इंक्वायरी बैठाना चाहते हैं जहां पर हम लोग ये पूरे सिचुएशन का छानबीन करवाएंगे और इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि फिर कौन गलत था और कौन सही. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000. सो पेजेंट्स भी तैयार थे कि हाँ हम मर मिटेंगे लेकिन हम जाएंगे गांधी के पीछे जो हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं. सो वो लोग बहुत सारा नोट्स लिख रहे थे, बहुत सारा चीज साइन हो रहा था जहां वो लोग अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स के लिख रहे थे. लैंडलॉर्ड्स भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met the leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. So जून में उनको बुलाया गया. सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उनको बुलाए गांधी को. ना गांधी न्यू कि मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है, हमको मारा भी जा सकता है, हमको कुछ भी किया जा सकता है. तो वो जाने से पहले एक डिटेल प्लान डिस्कस किए अपने सारे लॉयर्स और इन लोग के साथ, एंड बोले कि ये तुम लोग को करना है इन केस हम लौटेंगे नहीं. तब अगर हम नहीं लौटते तो तुम लोग ये सब चीज कैरी ऑन रखना और पेजेंट्स के साथ मत छोड़ना. सो ही मेड देम अंडरस्टैंड एंड ही वेंट. Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. So just look how strong the power of crowd or the power of mob could be. Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governors. तो गवर्नर के साथ उनका गांधी का इंटरव्यू होता है. they talk to each other, they discuss about the matter. As a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. So as a result of the interview and the discussion, एक official inquiry बैठाया गया किस चीज में, इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन के हालात को जानने के लिए. एज एन इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन मतलब हालात होता है. सो इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के हालात को, के सिचुएशन को समझने के लिए ऑफिशियल इंक्वायरी बैठाया गया. और ये इंक्वायरी कौन इनिशिएट किया है? खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो
चाह के भी बाकी जो लैंडलॉर्ड्स है वो अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि खुद ब्रिटिश जो हेड था वही ये सब चीज ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड इंक्वायरी होने दे रहा है. The commission consisted of the landlords, obviously government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. So this is such a huge victory that Gandhi was a person जो अनजान थे इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन के बारे में. राजकुमार शुक्ला एक नॉर्मल पेजेंट जो जिसे खाने पीने का ठिकाना नहीं था, रहने का नहीं था, वो गांधी के पास जाते हैं, उनको छोड़ते नहीं है और उनको कन्विंस करके अपने जो टाउन है वहां लाते हैं. एंड देन गांधी डिसाइड्स कि नहीं, अब हमको इन लोग का मदद करना है, बिकॉज ये लोग अभी तक उस डर से ग्रसित हैं जो डर बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए. एंड देन गांधी ये सब चीज जो भी हम लोग पास लेक्चर्स में पढ़े वो सब करते हैं. फाइनली रिजल्ट क्या हो रहा है कि एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ रहा है जो इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन के बारे में पता करेगा. और उसमें कौन कौन लोग हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो रहेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स, लैंडलॉर्ड्स भी हैं जिनके खिलाफ ये केस है, एंड गांधी है जो सोल रिप्रेजेंटेटिव है पेजेंट का. मतलब पेजेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है वहां कमीशन में, वो इंक्वायरी में? गांधी. So imagine the level of devotion he had towards his country and countrymen that he was doing all this. Now, let us see आगे क्या हो रहा है. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. तो वो लगातार 7 महीने वहां रह गए, उसके बाद वो बीच बीच में जाया करते थे. The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. तो वो visit जो generally ये expectation के साथ था कि अच्छा कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, पर वो almost 1 साल हो गया और वो 1 साल तक आगे पीछे आना जाना मिला के वो पूरा situation 1 साल तक किस तरह खींच गया था. Okay. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. And when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. Now, here comes the most interesting part of the chapter, जो बहुत मजा आएगा समझने में. Just let us see what is happening here first. जो ऑफिशियल इंक्वायरी बैठा था वो असेंबल किया था क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस. नाउ मेनी में आस्क मैम क्रशिंग माउंटेन क्यों लिखा है, ह्यूज एविडेंस भी तो लिख सकता था. अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर कैसे बोल रहा है, हम लोग को कैसे ये चीज फील करा रहा है कि उस वक्त क्या हो रहा था. अगर तुम एक माउंटेन को क्रश करोगे, ऑलराइट, व्हाट विल हैपन? अ लॉट ऑफ पीसेस विल कम आउट, टाइनी पीसेस. सोचो, इमेजिन करो माउंटेन को क्रश करने से कितना पीसेस रहेगा. सिमिलरली उतना एविडेंस मिला था, नॉट लिटरली जिस मेटाफोरिकली, उतना एविडेंस मिला था लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ. एंड तब ये डिसाइड किया गया कि लैंडलॉर्ड्स को अब रिफंड करना पड़ेगा, जितना पैसा लिया है शेयर क्रॉपर से सब वापस देना होगा. तो कोई पूछा गांधी से, तो हम लोग पे कैसे करें, हम लोग पेमेंट कैसे करें? ओके, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि अगर हम आप लोग से लूट लिए लेकिन हम लोग वापस कैसे देंगे. देखो, they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. तो लुई फिशर जो है, जो ऑथर स्टोरी का, वो हम लोग को बता रहा है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको लगा कि जरूर गांधी हम लोग से फुल पेमेंट मांगेंगे, रीपे करने बोलेंगे फुल अमाउंट. ओके, he asked only 50%. So this is the interesting part. गांधी सिर्फ 50% मांगे उन लोग से. Now this is weird because लैंडलॉर्ड्स इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किए हैं शेयर क्रॉपर्स को और उनको ठीक से रहने नहीं देते थे, अपना स्पेस के साथ नहीं रहने देते थे. सो इस सिचुएशन में गांधी उन लोग से सिर्फ 50% डिमांड कर रहे हैं कि तुम लोग अगर 1 लाख लिए हो तो तुम लोग चलो हमको 50,000 वापस करो, अगर 5,000 लिए हो तो सिर्फ 2,500 वापस करो. 50% गांधी बोले वापस कर दो. There he seemed
There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at a close range. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. So imagine, यहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग क्या बोल रहे एक J.Z. Hodge नाम का एक ब्रिटिश मिशनरी था. मिशनरी इज अ पर्सन हु प्रीचेस द गॉस्पेल, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. नाउ ही वाज अ मिशनरी, वो चंपारण आए हुए थे एंड यहाँ पर वो बोल रहे हैं वो पूरा एपिसोड को ऑब्जर्व किए कि हो क्या रहा है, तो वो हम लोग को बता रहे हैं. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. तो लैंडलॉर्ड से बोला था कि 50% पहले ही कम बोला है, अगर हम और कम बोलेंगे तो पक्का नहीं मानेंगे गांधी. बट जैसे ये लोग बोलते हैं कि 25% हम लोग दे पाएंगे, 50 तो नहीं हो पाएगा, मिस्टर गांधी एग्रीड. ही सेड ठीक है 25% सही लाके दे दो. Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. So obviously this creates an element of curiosity and interest कि जब इतना खराब किए हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडियन पेजेंट्स के साथ, तो पूरा अमाउंट नहीं मांग के सिर्फ 50% आप मांगे. उसमें भी वो लोग बोल रहे कि नहीं 25 देंगे, तो गांधी तैयार है कि हाँ ठीक है चलो 25 भी मिल जाए तो काफी है. नाउ व्हाई इज ही डूइंग दिस? Why for him money is less important than their situation right now? कि वो लोग का इज्जत पे असर पड़ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो लोग 50 दे या 1 करोड़ दे, उससे कोई मतलब नहीं है. ओके, सो what reasons he give? In the next class we'll discuss what reasons he is giving, and I hope in another 2 lectures I'll be able to finish the chapter. Okay, till part 10 I'll try to finish the chapter and then I'll give the question answers and the summary as well. Okay, so let us see what happens, what reason Gandhi gives, and that is one of the most important questions also which is asked in boards. So what reason he gave, what was the main intention he was having in his mind, we'll all discuss that in the next class. Okay.